Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 12, weather and seasons on earth. तो हमारी अर्थ पर जो वेदर है, जो सीजन है, हर टाइम सेम नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। तो हम देखते हैं कि हम कौन कौन से वेदर और सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 12, वेदर एंड सीजन्स ऑन अर्थ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेदर, व्हाट कॉजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर, फॉग, मिस्ट, ड्यू एंड ह्यूमिडिटी एंड सीजन्स इन इंडिया। फाइन, नाउ एन एक्टिविटी इज गिवन टू अस, डिस्क्राइब द पिक्चर। आपको पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो कि अम्ब्रेला कैरी कर रही है। तो ये क्या है? इट इज अ रेनी डे and we use umbrella on rainy day. We also wear raincoat and gumboots. Fine. Now weather. अब weather क्या है? Weather refers to condition of atmosphere around us, especially in terms of temperature, wind and rainfall at a specific time and place. तो वेदर क्या है? हमारे आसपास की एयर की कंडीशन, टेम्परेचर के टर्म्स में, रेन के टर्म्स में और ह्यूमिडिटी के टर्म्स में। ठीक है? It is something that can change from day to day and even from one location to another. Some days might be bright and sunny while others could be cloudy, windy or rainy. जो वेदर है डे टू डे चेंज होता है। हो सकता है आज धूप निकल रही हो, कल बारिश हो जाए, और एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम जाते हैं तो हो सकता है वहां भी हमें वेदर चेंजेस देखने को मिले। Now windy days. When wind blows strongly and quickly, we experience a windy day. Such days usually feel cooler compared to warm sunny days. Sometimes strong winds come with thunder, lightning and heavy rain, turning it to a storm. These storms can cause serious damage to trees, buildings and vehicles. तो जब wind strongly blow करता है तब उसको क्या बोलते हैं? windy day है। ठीक है? जिस दिन हवा बहुत अच्छी चलती है। तो ऐसे दिन हमें कूलर फील होते हैं, ज़्यादा गर्मी हमें नहीं लगती है एज कम्पेयर टू सनी डेज। और जब ये विंड बहुत तेज हो जाता है, ठीक है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इसके साथ लाइटिंग होती है, थंडर होता है, बहुत तेज बारिश होती है, तो हम इसको बोलते हैं स्टॉर्म। जो स्टॉर्म है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज्यादा तबाही वो मचाता है। ठीक है? Now sunny days. Sunny days are cloudless, warm and bright. The rays of sun are slanting during mornings and evenings as the sun is low in sky. Therefore, morning and evenings are cooler as compared to hot afternoons when the sun is overhead and its rays fall straightly on earth. तो सनी डे तब होता है जब हमारा सन ब्राइटली शाइन करता है स्काई में। ठीक है? सुबह और शाम के टाइम हमें इतनी गर्मी नहीं लगती है क्योंकि सनलाइट जो है, जो सनरेज है वो स्लैंटिंग होती है, पर नून के टाइम ये जो रेज है डायरेक्टली हमारे सर पर पड़ती है तो हमें ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है? Now rainy days. When it rains, sky becomes dark as it is covered with dark clouds. Rain are usually accompanied by wind, sometimes in the form of thunderstorm and lightning. It is cool on rainy days. तो rainy days में जो sky है dark हो जाता है, dark color के clouds आ जाते हैं, rain के साथ हमें ठंडा सुनाई देता है, lightning दिखाई देती है, और जो rainy days होते हैं थोड़े से cool होते हैं। Now cloudy days. On cloudy days we see many clouds in the sky. They often block the sunshine, making the weather pleasant. These clouds may also bring rain and produce thunder and lightning. Cloudy days पर हम clouds देखते हैं स्काई में, तो हमें उस दिन गर्मी कम लगती है क्योंकि जो सन है वो क्लाउड के पीछे छुप जाता है और क्लाउड्स की वजह से रेन भी आती है और हमें थंडर कट, और हो सकता है हम थंडर और लाइटनिंग भी एक्सपीरियंस करें। Now, lack of rain or too much of rain, both are not good for us. Lack of rain over long period of time in droughts. Human beings, animals and plants start dying due to lack of water and food if drought lasts too long. Similarly, too much rain brings floods. They cause a lot of damage to crop, buildings and roads and carry away or drown animals and even human beings. तो बहुत ज़्यादा बारिश होना या बहुत कम बारिश होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ होगा, ना पीने के लिए पानी होगा। और ऐसे ही अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो पानी भर जाएगा एक जगह पर, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा, और फ्लड की वजह से क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, रोड्स को डैमेज होता है, हमारे घर भी पानी में बह सकते हैं और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स भी पानी के साथ बहकर जा सकते हैं। ठीक है?
What causes the different types of weather? अब ये जो वेदर हैं ये अलग अलग क्यों होते हैं, किस वजह से कॉज होते हैं? Our daily weather is caused by a mixture of three things: sun, air and water. तो जो वेदर में चेंजेस हैं हमें तीन चीजों की वजह से देखने को मिलते हैं, जो कि है सन, एयर और वाटर. The sun gives us warmth, the air moves to make the wind, and water gives the cloud rain and snow. तो सन की जो वार्मथ है वो विंड को मूव कराती है, उसकी वजह से वाटर भी मूव करता है और हमारी अर्थ पर रेन होती है, स्नोफॉल होती है. ठीक है. Now the sun rises in the morning. At noon it is hot because sun shines directly overhead. Sunset in evening. It is cool and pleasant. Nights are cooler than days. During the course of a single day, weather changes several times. The sun causes these changes. तो सन सुबह को राइज करता है, ठीक है, और दोपहर में हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है, इसलिए हमें बहुत गर्मी लगती है, और शाम के टाइम में सेट करने लगता है. तो सुबह शाम कंपैरेटिवली कूलर होते हैं और रात को हमें और ज्यादा ठंडक महसूस होती है, और एक दिन में हम कई बार वेदर चेंज एक्सपीरियंस कर सकते हैं सन की वजह से. ठीक है. Next is clouds. On some days the sky is overcast with clouds. On such cloudy days a few rays of sun reach us. So cloudy days are cooler than sunny days. Clear nights are cool and refreshing. Cloudy nights are dull and warm. Clouds change the weather. तो कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हमें क्लाउड्स दिखते हैं, तो अगर सुबह हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं तो जो सनलाइट है क्लाउड्स की वजह से ब्लॉक हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा प्लीजेंट फील होता है. पर रात को इससे उल्टा होता है, अगर रात को क्लाउड्स नहीं है तो हमें कूलर रिफ्रेशिंग फील होगा, पर अगर रात को क्लाउड्स है तो हमें थोड़ी सी गर्मी लगेगी. ठीक है. Now winds. Wind also change the weather. In summer, hot wind blows called Loo. We sweat a lot. We don't dare to go out. In winter, very cold wind blows. We shiver in beds. तो विंड की वजह से भी वेदर चेंज होता है, जैसे कि गर्मियों में बहुत गर्म हवा चलती है जिसको हम लू बोलते हैं, और सर्दियों में बहुत ठंडी हवा चलती है जिसकी वजह से हम कांपने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं. ठीक है. Now rains. During rain, sky remains overcast with clouds. Gusty winds blow. The temperature goes down. Atmosphere becomes humid. Rain change the weather. तो रेन के टाइम क्या होता है, स्काई क्लाउड से कवर हो जाता है. ठीक है. रेन्स जो है वेदर को थोड़ा सा ठंडा बना देती हैं, प्लीजेंट बना देती हैं, और ऐसे वेदर में हमें बहुत अच्छा फील होता है. Snowflakes or hailstone and raindrops are made in same way, but when it is very cold, the water drop freezes to form ice crystal and fall from clouds as snow. तो जब ये पानी की बूंदें ठंड की वजह से जम जाती है तो हम स्नोफॉल एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है. Now fog, mist, dew and humidity. अब fog, mist, dew और humidity क्या है? Fog is simply a low-lying bank of clouds. Fogs form when warm moist air come in contact with cold ground. As the air cools, the moisture it contains forms tiny droplets that make up clouds. तो fog क्या है? एक low-lying bank है clouds का. ठीक है. जब clouds हमें नीचे दिखने लगते हैं तो हम उसको fog बोलते हैं. तो एयर में वाटर वेपर है, जब ये वाटर वेपर नीचे ग्राउंड के साथ कंबाइन करती है तो ये ठंडी हो जाती है. जब ये वाटर वेपर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आकर ठंडी हो जाती है. तो फॉग क्या है? एक लो लाइंग क्लाउड है. ठीक है. जैसे क्लाउड्स है थोड़े से जब सरफेस पर आ जाते हैं, सरफेस पर ही बनने लगते हैं, तो हम उसको फॉग बोलते हैं. तो फॉग तब बनते हैं जब हमारी जो एयर है ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में आती है और उसके अंदर के जो वाटर वेपर है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और क्लाउड्स बना देती है. मिस्ट इज लाइटर देन फॉग. मिस्ट जो है मिस्ट जो है फॉग से और ज्यादा लाइट होता है. आफ्टर अ कोल्ड नाइट ड्यू कैन बी सीन ऑन ग्रास एंड ऑन अदर लीव्स. दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग अ कोल्ड नाइट एयर होल्ड्स लेस वाटर वेपर देन हॉट एयर, सो वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो एक कोल्ड नाइट के बाद हमें पेड़ों पर क्या दिखती हैं? ड्रॉप्स दिखती हैं वाटर की. ऐसा इसलिए है जब ठंडक होती है तो एयर कम वाटर वेपर होल्ड कर पाती है, तो वो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है जो हमें आसपास के सरफेस पर दिखती है. When the temperature drops below 0 degree Celsius, water vapor freezes and forms frost. जब वाटर वेपर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाता है तो फ्रॉस्ट फॉर्म होता है. ठीक है. Humidity is amount of water vapor in air. Humidity is amount of water in the air. If air contains only little water vapor, humidity is low. When air holds a lot of moisture, we can say humidity is high. Warm air can carry more water vapor than cold air. That is why in some hot places it is very humid, and humid places our skin feels sticky.
तो ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि एयर होल्ड कर सकती है, ठीक है। अगर गर्मी ज्यादा है तो वाटर वेपर ज्यादा होगी, और अगर गर्मी कम है तो वाटर वेपर कम होल्ड कर पाएगा एयर, ठीक है। इसलिए जो जगह बहुत ज्यादा गर्म होती है वहां पर हमें ज्यादा स्टिकी फील होता है। फाइन। नाउ सीजन्स इन इंडिया। अब हम इंडिया में कौन कौन से सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं। The weather changes in every 3 to 4 months to form seasons. India has 4 seasons in a year. They are summer, monsoon, winter and spring. तो वेदर 3 से 4 महीने में चेंज होते हैं, तो इंडिया में मेनली हम 4 सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है समर सीजन। इन समर द वेदर रिमेन्स हॉट। इन दिस सीजन we get direct sun rays. The days are long, nights are short in summer season. People use fans and cooler to get relief. We wear light and soft clothes. We like to drink plenty of cold drinks. तो समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सन रेज जो है डायरेक्टली हम पर पड़ती है, तो इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है। तो ऐसे डेज में हम फैंस का, एयर कंडीशनर्स का, कूलर का यूज़ करते हैं। ऐसे डेज में हम लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, और ऐसे सीजन में हमें आइसक्रीम खाना और कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ऐसे सीजन में जो डेज होते हैं वो लंबे होते हैं और नाइट्स शॉर्ट होती हैं। देन द रेनी सीजन या मॉनसून सीजन। When it rains heavily, roads and railway lines are flooded with water on cloudy days. The sky remains full of clouds. These days are cooler than the sunny days. The sun rays do not reach on the earth because they are blocked by the clouds. Therefore, earth does not get warm. तो जब बहुत तेज बारिश होती है तो आसपास पानी भर जाता है, ठीक है। स्काई में हमें क्लाउड्स दिखते हैं क्योंकि सनलाइट क्लाउड्स की वजह से अर्थ तक नहीं आ पाती है, इसलिए हमें ऐसे डेज पर कूल फील होता है, ठीक है। नाउ इन्फो चेक। ट्रेन्स और एरोप्लेन्स यूजुअली डिले हो जाते हैं विंटर्स में फॉग की वजह से, और जो फॉग है वो चीज़ों की विजिबिलिटी कम कर देता है, हमें चीज़ें कम दिखती हैं। नाउ द विंटर सीजन। Winter season is the coldest season. Days are short in many parts of India. It is very cold. People wear woolen clothes. There is snow in some parts of our country. But in some parts of India, it is not very cold. Even during winter season, we wear woolen clothes and take hot items to keep ourselves warm. तो विंटर सीजन कोल्डेस्ट सीजन होता है, जहाँ जब बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो कुछ पार्ट्स में तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, लोगों को बहुत सारे वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं, और कुछ पार्ट्स में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, ठीक है। विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, तो वहाँ पर वुलन क्लोथ्स कंपैरेटिवली कम पहनने पड़ते हैं। और ऐसे सीजन में हमें वार्म रहना पसंद है, गरम गरम चीज़ें खाना और पीना पसंद है, ठीक है। The spring season. Spring comes after winter. The weather remains pleasant during this season. There is beauty of nature all around. Colorful flowers and green leaves are seen all around in this season. तो स्प्रिंग सीजन विंटर के बाद आता है, ठीक है। ऐसे सीजन में नेचर की ब्यूटी बहुत अच्छी होती है, नए नए फूल आते हैं पेड़ों पर जो कि बहुत कलरफुल लगते हैं, और हरी भरी पत्तियां भी आती हैं, ठीक है। Now thunder and lightning. When the weather is bad, lightning builds up inside clouds. Lightning is giant spark of electricity escaping. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ आपको एक लाइटनिंग दिख रही है। जब मौसम खराब होता है तो क्या होता है, क्लाउड्स में ऐसे लाइटनिंग बन जाती है, और ये लाइटनिंग हमें ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की एस्केपिंग दिखती है। Then the lightning heats the air around it. Hot air pushes against the cool air and makes the sound of thunder. Lightning की वजह से आसपास की एयर गर्म हो जाती है, गर्म एयर कोल्ड एयर के साथ टकराती है और हमें थंडर की साउंड सुनाई देती है, ठीक है। Now fill in the blanks. जो चेंज है सीजन का वो किसका रिजल्ट है? अर्थ की रेवोल्यूशन का। देन समर्स के टाइम हमें पानी पीना पसंद होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं। विंटर में कोल्ड एयर्स ब्लो करते हैं। फाइन। नाउ सिनॉप्सिस। अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा वेदर क्या है, कंडीशन है एटमॉस्फेयर की और उसके आसपास की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड एंड रेन एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पर। फास्ट मूविंग विंड रिस्पॉन्सिबल है विंडी डे के लिए, और रेनी डेज पर कूल लगता है हमें। बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत कम बारिश हमारे लिए अच्छी नहीं है। सनराइज होता है मॉर्निंग में, विंड की वजह से भी वेदर चेंज होता है, और लोग यूज करते हैं फैंस और कूलर समर से रिलीफ लेने के लिए। लोग फैंस और कूलर्स का यूज करते हैं समर में रिलीफ के लिए, और विंटर सीजन कोल्डेस्ट सीजन है, ठीक है। Now take the correct option. Air is mixture of many gases. Moving air is called wind. Pleasant blowing air is called breeze. Dash is lighter than fog. The answer is mist. Fine. Now fill in the blanks. We like to eat ice cream in summer.
Dash refers to condition of atmosphere around us. The answer is weather. We wear light and soft clothes in summer season. The dash season comes after winter. The answer is spring. The dash falls straight during the summer season. The answer is sun rays. Then true false. Nights are cooler than days. This is true. Moving air is called wind. This is true. The lighting heats the air around it. This is true. Weather remains same throughout the year. This is false. Okay. Now match the following. Mist lighter than fog. Fog. Low-lying bank of clouds. Dew. Water droplets form during cold nights, humidity, amount of water in the air, and frost. The form of water vapor when the temperature drops below 0 degrees Celsius. Fine? So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.